My name is Saurabh Bakshi. Today I will just take you for the class 10th, the first chapter in biology, that is the life process. Let us recapitulate the entire thing, whatever we have studied, the life process in my earlier classes. We can start with that. What is the life process? Life process actually we can say it is a vital process. We can say it is a vital process. Vital process means this is a very essential and necessary processes for the living beings. And these processes actually differentiated the living things and non-living things. These are the basic, the life processes, the aspects. Now we will see that what are the life processes. Let us take some example. Don't go in the books. Let us have some regular examples. How we can differentiate between the living and non-living things. Very first, let us see that movement. Movement. If I ask you, have you seen any scooter or motorcycle or your pen or pencil is moving automatically? No, it never happens. It requires some external forces. So human being or any animals or any living creatures create some movement, then only it can move. But in the living thing, what happens? Human being or animals or plants, they have got the different movements. That is one aspect we can differentiate living things with the non-living things. This is the first. If I ask you, reproductions. Reproduction means produced. Reproductions. If I ask you, have you seen that a pen, you have got the pen, has produced another pen? We have never seen, because that is a non-living things. But in the living things, for the plants or animal, we can see there is a chances that they can produce a new progeny. New progeny means new offsprings, and that is called as a reproductions. So these are, I have given you only the two examples. There are ample of examples are there which helps us to differentiate between the living and non-living things. These are actually the vital or life processes, right? And now next question comes, if I ask you that what are the life processes? What are the different life processes, or how we will move in our chapters? Very first thing, let us see that life process, in the life processes, if I take, there is two aspects we have studied. That is, one is nutritions, and another is nutrients, right? Nutrients and nutritions. What are the two aspects? You should know. We can explain it in the later on. But for the initial stage, we can discuss that nutrition. This is a process actually. Process में हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रिया प्रक्रिया, nutritions. और न्यूट्रिएंट्स जो है ये क्या है? ये फूड कंपोनेंट्स, दैट इज अ फूड कंपोनेंट. जैसे हम लोग रोज के दिन में खाते हैं, क्या खाते हैं हम लोग? न्यूट्रिएंट्स में आप मान लीजिए हम लोग दाल लेते हैं, सब्जी लेते हैं, चावल लेते हैं. ये क्या करता है? डिफरेंट एंगल से हमारा बॉडी को हेल्प करता है. मैं उस पॉइंट्स पे आ रहा हूँ. जैसे न्यूट्रिएंट्स में आप देखिएगा, हमारा न्यूट्रिएंट्स जो फूड कंपोनेंट हम बोले, ये जनरली 5 और या 7 तरह का बोल सकते हैं. इंपॉर्टेंटली 5 है और 2 है एडिशनल से. कौन है वो? सबसे पहले देखिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट. हम लोग पढ़े हैं बचपन में, ऐसा नहीं है, वी हैव स्टडीड ऑलरेडी. कार्बोहाइड्रेट इज देयर, प्रोटीन इज देयर, फैट इज देयर, देन vitamins is there, vitamins, then minerals are there. So these are the essential, these 5: carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals. These are the essential part of our food component. Additionally, fiber and water is also important. Fiber and water, these are also very important. Now let us see one by one. If I ask you that I need the carbohydrate, then you may ask you that, sir, हम लोग क्या लेके कार्बोहाइड्रेट लें? तो हम लोग जो रेगुलर खाने में आप देखिएगा, हम लोग का जो इंडियन फूड्स है वो क्या हम लोग लेते हैं? रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, सब्जी लेते हैं. जो नॉनवेज लेते हैं वो अलग लेते हैं. हमारा जो रोटी या चावल है, रोटी या चावल हम लोग जो लेते हैं, वो लेने से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है. इसको छोड़कर और कई चीजें हैं. कार्बोहाइड्रेट मेनली हम लोग का जो रिसोर्सेस है वो कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो हमको बेसिक क्या लेना पड़ेगा? चावल या रोटी लेना पड़ेगा,
तो जो कि कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन जैसे दाल हम लोग लेते हैं, दाल में बहुत प्रोटीन है। आप लेग्यूम्स ले लीजिए, लेग्यूम्स मतलब दाल ही हुआ, चना हुआ, मसूर हुआ, मूंग हुआ, ये सब में आपको बहुत सा प्रोटीन मिलेंगे। इसके साथ क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जैसे फैट्स। हम लोग घी लेते हैं या कोई सरसों तेल या सोयाबीन या आपका रिफाइंड तेल जिसको बोलते हैं, या मक्खन हुआ, ये सब आपको फैट प्रोड्यूस करता है। फैट क्या करता है? फैट भी आपको बॉडी में एनर्जी देता है। तो हमारे जो ये पांचों कंपोनेंट में, कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देगा, प्रोटीन आपको बॉडी बिल्डिंग, हमारा जो बॉडी का ग्रोथ होता है, जैसे आप लोग का जो हेल्थ है या हाइट है आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, आप लोग यू आर एट द एज ऑफ 15-16 ईयर्स, तो आप जैसे बढ़ रहे हैं तो इसका किसका जिम्मेवारी है? तो प्रोटीन का जिम्मेवारी। प्रोटीन हमको कहाँ से मिलेगा? दाल से मिलेगा, या हमारा नॉनवेज जो आइटम्स है, चिकन हुआ, मटन हुआ, या वेज में आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे दूध में बहुत प्रोटीन है। उसके बाद आता है फैट्स, अभी हम आपको बताएं। फिर आता है विटामिन, मिनरल्स, या आपको सब्जी या आपको आपका फल जो फ्रूट्स हम लोग लेते हैं, ये पूरा कंपोनेंट आपका पांचों चीज आ जाता है। तो ये सब चीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वे में हमारी बॉडी में हेल्प करता है। ये सभी चीज प्लस फाइबर। फाइबर क्या होता है? जो हमारा, हम किसी भी में फाइबर मिल सकता है, कई फ्रूट्स में फाइबर्स होते हैं। जनरली फ्रूट्स का या सब्जी का जो छिलका होता है, दीज आर द रिच इन फाइबर्स, और वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये क्या होता है, हमारे ये जो सातों चीज है, इस टोटल चीज को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, राइट। अब आते हैं हम लोग न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन क्या है? ये क्रिया प्रक्रिया है, दिस इज अ प्रोसेस। और ये क्या होता है, हम आपको इस चीज को बताते हैं, जस्ट 1 मिनट। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द न्यूट्रिशन? वी कैन सी दैट, हम लोग जब ये प्रक्रिया है, सबसे पहले देखिए, हम लोग जब फूड लेते हैं तो हम नेचुरली उसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्शंस। इंजेक्शंस हो गया, हम लोग फूड को लिए, वी टेक द फूड, कोई भी खाना खाए। इसके बाद क्या होता है, प्रक्रिया होता है, दैट इज कॉल्ड द डाइजेशंस। डाइजेशंस का मतलब हुआ फूड जो है वो हमारा हजम की प्रक्रिया में गया, हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है। हमारे माउथ में जैसे टंग है और हमारे दांत हैं जिसको टीथ बोलते हैं, और आपको पता होगा टीथ 4 तरह के होते हैं, इंसिजर होता है, कैनाइन होता है, मोलर होता है और प्रीमोलर होता है। ये चारों का अलग अलग रोल है। ठीक है, हम लोग जब खाना खाते हैं आप महसूस करते होंगे कि हम चबाते हैं, हम काटते हैं, हम फाड़ते हैं, कोई भी चीज़ जब खाते हैं तो वो सब चीज़ क्या है, वो मेरा टीथ का काम है। तो हमारा वो प्रक्रिया शुरू होता है डाइजेशन का। कहाँ से शुरू होता है? तो माउथ से शुरू होता है, एनस में जाकर खत्म होता है। डाइजेशन के बाद एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब खाना, हम लोग जो भी हम लोग खाना खाए, इट गॉट डाइजेस्टेड, और जो हमारा रिक्वायर्ड हो, जो हमारे लिए जरूरी है, वो क्या होगा, हमारा बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन होने के बाद और एक प्रक्रिया है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि हमारा बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन हो गया, वो फूड जो एब्जॉर्ब हो गया, वो फर्दर क्या होता है, वो फर्दर होता है, वो ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे कि एनर्जी रिलीज होता है। इसका मतलब एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होगा। और नेक्स्ट स्टेज, व्हाट इज द लास्ट स्टेज, दैट इज द इजेक्शंस। व्हाट इज द इजेक्शंस? जब आपका फूड लिए, आपका फूड का डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, और जो फूड एब्जॉर्ब हुआ उसका यूटिलाइजेशन हुआ एज एसिमिलेशन, देन इट यूज एज इन द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब हो गया अनडाइजेस्टेड फूड जो है, इट विल बी थ्रोन आउट ऑफ योर बॉडी, that is useless foods are thrown out of body from our excretory system. This is inter process of the nutrients and nutrition. You should know that. So if I recapitulate what we started with the life process. Life processes are the vital processes. I have given you the example, some of the life processes which actually differentiate from the living to the non-living things. And next comes to the, what are the important aspects when we study the life processes. First let us start with the nutrition and nutrients. I just explained that what are the nutritions and nutritions. Now, if I go in the next stage, we can say that one process, that is, I said the nutritions. ये न्यूट्रिशन कितने तरह का हो सकता है? इसका मतलब न्यूट्रिशन दुनिया में अगर हम देखें कितने तरह का हो सकता है, तो न्यूट्रिशन जनरली 2 तरह का हो सकता है। एक है ऑटोट्रॉप्स, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ऑटोट्रॉप्स। अनदर इज द हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट।
न्यूट्रिशन मैंने बताया कि ये प्रोसेस है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और ये आपका जो हम लोग पांचों प्रोसेस पर है, इजेशन। ये जो पांचों चीज है, ये स्टेप्स जो है न्यूट्रिशन का, वही न्यूट्रिशन को हम लोग दो तरह में बांट सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब है ऐसा लिविंग क्रीचर्स इन दिस वर्ल्ड हु कैन क्रिएट देयर ओन फूड। कोई आप बता सकते हैं कौन है जो अपना खुद खाना बना सकता है? दैट इज ओनली द ग्रीन प्लांट्स। हरा पेड़ जो होता है वो अपना खाना बना सकता है। वी कॉल देम द ऑटोट्रॉप्स। इसका मतलब पूरा दुनिया में देयर इज ओनली वन सोर्स, दैट इज अ ग्रीन प्लांट जो अपना खाना बना सकता है। वी कॉल इज ऑटोट्रॉप्स। और हेटेरोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग उस ऑटोट्रॉप्स में, मतलब ग्रीन पेड़ पर हम लोग डिपेंडेंट होते हैं कि मेरा फूड वो मुहैया कराता है। तो हम लोग ऑटोट्रॉप्स जो खाना बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, और जो उस खाने पर डिपेंडेंट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको हम लोग हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। हम आपको फिर नेक्स्ट सेशन में हम आपको लेके चलते हैं, इसके आगे हम बताते हैं ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स क्या है। सेव इसी से होगा। नहीं, उसको